The universe is eternally captivating to humankind. The emissions from celestial objects such as black holes, neutron stars, and other energetic events arise from intricate physical processes and provide a formidable challenge to understand. In order to surmount this challenge, ISRO is gearing up to launch India's first dedicated polarimetry and spectroscopy satellite, XPOSat. It aims to carry out research in space-based polarization measurements of X-ray emission from celestial sources. The XPOSat satellite will be carried by a 4-stage DL variant of the PSLV C-58 rocket from the first launch pad of the Spaceport of India, Satish Dhawan Space Center, SDSC Shar, Sriharikota. XPOSat will be positioned in a circular low Earth orbit with an altitude of 650 kilometers and 6-degree inclination. The XPOSat satellite has been configured in a modified IMS-2 bus. XPOSat has been ingeniously engineered to accommodate a duo of payloads, namely POLIX and Expect. POLIX is realized by the Raman Research Institute, Bengaluru. It will measure the polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 kilo electron volt emanating from about 50 potential cosmic sources. URSC ISRO realized Expect. It will carry out long-term spectral and temporal studies of cosmic X-ray sources in the energy band 0.8 to 15 kilo electron volt. XPOSat, through its X-ray polarization measurements and analysis of long-term spectro-temporal variability, aims to provide essential insights into the nature of high-energy cosmic sources in astronomy. हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल आईएएस। अभी जो फोटोज आपने देखी है ये ऑफिशियल इसरो की वेबसाइट से ली गई है, जहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सपोसैट के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने बताया है। मैं बहुत गर्व के साथ एक इंडियन होने के नाते कह सकता हूँ कि इसरो ऐसा करने वाला दुनिया का सेकेंड स्पेस एजेंसी हो गया है। ना ही चाइना, ना ही जापान, ना ही यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट ये काम कर पाया है। But before we begin, my question for today is related to today's topic of discussion, which is X-ray Polarimeter Space Observatory. Question is, which was NASA's first mission to study the polarization of X-ray for celestial objects? So आपको मिशन का नाम बताना है. So let's begin our video. X-ray Polarimeter Satellite is a space observatory manufactured by ISRO. स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? यहाँ टेलीस्कोप और अदर इंस्ट्रूमेंट दैट आर लॉन्च इनटू स्पेस टू कलेक्ट डेटा ऑन डिस्टेंट प्लैनेट, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। एक्सपोसैट इंडिया का पहला मिशन है जो पोलराइजेशन ऑफ एक्स रे फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करेगा मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं एक्सपोसैट से रिलेटेड। एक्सपोसैट का प्राइमरी मिशन है टू स्टडी द ओरिएंटेशन ऑफ लाइट वाइब्रेशन एंड द ज्योमेट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज। इसमें पेलोड दो हैं, POLIX, that is polarimeter instrument in X-ray, and X-ray spec, that is X-ray spectroscopy and timing. जो ये POLIX है ये डेवलप्ड हुआ है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। POLIX will study degree and angular polarization of bright ray X-ray sources. अब एक्सपोसैट का टारगेट क्या है? एक्सपोसैट will study the 50 brightest known sources in the universe, including pulsars, black hole, X-ray binaries, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन स्टार एंड नॉन थर्मल सुपरनोवा रेमिनेंट्स। ये ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो रीजन है स्पेस का जहाँ पे कुछ भी पास नहीं होता है। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर लाइट भी पास होगी ना तो पास हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट वहाँ पे होता है एक तरह से गायब सी हो जाती है। आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोनेशन, जब स्टार का जो कोर होता है जो बचता है, अगर वो लेस डेंस कहलाएगा तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल बन जाएगा। अच्छा, ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेटरी इज प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट 500 टू 700 किलोमीटर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसरो ने इसे 650 किलोमीटर पर डिप्लॉय किया है। इसे लॉन्च कब किया है? एक्सपोसैट मिशन लिफ्टेड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश एट 9:10 AM IST ऑन January 1st, 2024। इसकी लाइफ मिशन क्या है?
इसकी जो लाइफ साइकिल है 5 इयर्स की है, वेरस नासा वाले की सिर्फ 2 ही साल की थी। इसरो ने कहा है कि एक्सपोसैट सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स मोर देन जस्ट फॉर इंडिया। एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। इसमें पैसिव कॉलीमेटर्स हैं। पैसिव कॉलीमेटर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द बैकग्राउंड बाय नैरोइंग द फील्ड व्यू एक्सपोसैट। एल्टीट्यूड क्या रहेगा? एल्टीट्यूड 650 है। अच्छा, इसमें क्या पीएसएलवी का जो फोर्थ स्टेज है जो होगा वो एक तरीके से ना कह लो कि इंजन ऑफ कर दिया जाएगा पेलोड की वजह से। इट विल ड्रॉप डाउन टू 350 किलोमीटर। सो बेसिकली साइंटिस्ट हैव ब्रिंग द सैटेलाइट टू अ लोअर एल्टीट्यूड ऑफ 350 किलोमीटर फॉर कंडक्टिंग द पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसे हम पोएम भी कहते हैं। तो आइए पोएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई कविता नहीं है। पोएम का फुल फॉर्म है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इस मिशन में इसरो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेगी स्पेस ऑर्बिट। पोएम uses the spent PS4 stage of the PSLV CL launch vehicle as an orbital platform। ये PSLV का पहला फोर्थ स्टेज बेस्ड कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है, जो कि स्टेबलाइज होते हैं किससे? 8 हीलियम बेस्ड कोल्ड गैस थ्रस्टर से प्राइमरी मिशन एंड स्टेज पैसिवाइजेशन के बाद। अब सवाल है कि इससे पावर कहाँ से मिलती है? ये फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स हैं और लिथियम आयन बैटरीज हैं। अच्छा, पोएम में ना 10 पेलोड है। आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे पेलोड हैं, उनका पर्पस क्या है, एजेंसी क्या है। तो इसमें से वुमेन इंजीनियर सैटेलाइट वीसैट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से भी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि RSEM है, इसका क्या काम है? इवैल्यूएशन ऑफ टैंटलम। टैंटलम कहाँ मिला था? अभी में सतलज में मिला था। तो आप कह सकते हैं मतलब इसे आप ना पॉज करके नज़र डाल सकते हैं कि किसका क्या काम है और किस एजेंसी ने सब किया है। काफ़ी बात हो गई पोलरीमीटर से रिलेटेड। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं पोलरीमीटर क्या है, कैसे काम करता है, किस यूज़ में आता है। अच्छा, पोलरीमीटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बीम्स एंड सैंपल्स। Polarimeter is the measurement of the degree of polarization of radiation reflected from a satellite surface. Polarization is characteristics क्या है? उसके शेप, साइज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी सरफेस पार्टिकल की सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्या पोलराइजेशन हम देख सकते हैं नेकेड आई से? पोलराइजेशन इज विजिबल टू ह्यूमंस, मतलब दिखेगा नहीं। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ग्रासहॉपर हो गया, बीस हो गया या एंड्स हो गए, इन्हें दिखता है। सो बीस एंड इंसेक्ट्स इसका यूज नेविगेशन के लिए करते हैं एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट के हिसाब से ही अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ट्रॉपिकल बटरफ्लाई स्पीशीज जो होती हैं कैन इवन रिफ्लेक्ट पोलराइज लाइट विद इट्स विंग, मतलब सुपर पावर ही है। और लोग सिर्फ ह्यूमन को सुपर स्पीशीज समझते हैं। हर एक जानवर, इंसेक्ट, बर्ड एक्सेट्रा जो भी हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब में एक यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, इसलिए इनका प्रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। लाइट जो हम देखते हैं वो अनपोलराइज होती है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लाइट वेव रैंडमली ऑसिलेट करते हैं, देखिए फिगर में भी आप। तो पोलराइजेशन फिल्टर का यूज हम करते हैं जिससे उसे एक फिक्स डायरेक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये फिल्टर बाकी लाइट वेव को अदर डायरेक्शन में जो है उन्हें सप्रेस कर देता है। अब देखिए इन फोटोज को भी कि फिल्टर कैसे दिख रहा है, विदाउट फिल्टर कैसे दिख रही है। अच्छा, आप ना एक एक्सपेरिमेंट खुद से भी ट्राई कर सकते हो। टेक फॉर एग्जाम्पल है 3D ग्लास। उसमें आप लोग एंगल से देखो, जो चीजें अलग वे में दिखती हैं। सो मतलब है कि किसी एंगल पर लाइट ने ट्रेवल किया है, हमारी आइज ने देखा है, परसीव कुछ और किया है, इसलिए हमें 3D विजन दिखता है बेसिकली। क्या आप जानते हैं कि पोलर बियर की स्किन डार्क कलर होती है बट रिफ्लेक्ट तो व्हाइट लाइट करता है, इसलिए हमें दिखता व्हाइट है ना? अमेजिंग दुनिया। फिगर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ना कि लाइट जो है टंगस्टन हेलोजन लैम्प से निकली एंड फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ पे क्या है एक मॉड्यूल लगा रखा है, हाई एंड मॉड्यूल, और इससे पास हुई लाइट है पोलरीमीटर सैंपल सेल है। तो आप देखोगे कि जिस हिसाब से लिक्विड होगा ना उसी हिसाब से वहाँ पे रिफ्लेक्शन जाएगा और उसी हिसाब से लाइट कितनी एब्जॉर्ब होनी है, कितनी नहीं एब्जॉर्ब होनी है, और आगे भी आप देख सकते हो उसका एंगल चेंज हो रहा है। जब हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हैं, इट हैज फॉलिंग इफेक्ट, द लाइट एट द बैक ऑफ द स्क्रीन बिकम लेस विजिबल। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑसिलेशन प्लेन ऑफ द लाइट हैज बीन चेंज। शुगर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उसने रोटेट कर दिया पोलराइजेशन के डायरेक्शन को। एंगुलर रोटेशन डिपेंड करता है लेंथ क्या है सोल्यूशन का और कितना कंसंट्रेशन है शुगर सोल्यूशन का, या किस टाइप का यूज किया हुआ है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे फिक पोलरीमीटर है, पोलरीमीटर ट्यूब लगा हुआ है। अच्छा, ये नोटिस कीजिएगा ना, प्लेन ऑफ द वाइब्रेटिंग लाइट हैज चेंज आफ्टर गोइंग थ्रू द पोलरीमीटर ट्यूब। अब एनालाइजर है, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, अगर ट्यूब इज फिल्ड विद ग्रेन्युलेटेड शुगर, जैसे कि हम बोलते हैं ना सुक्रोज,
द एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इफ द ट्यूब इज फिल्ड विद प्योर फ्रक्टस, द एंगल ऑफ रोटेशन इज लेवरोटेटरी, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। एप्लीकेशन क्या है पोलरिमीटर का, वो देख लेते हैं। अब इससे मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है या क्वांटिटी जो कि उसमें यूज़ हुई है, जैसे कि कितने टाइप के कंपोनेंट मिक्स्ड हुए हैं, ये भी पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो कि कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें कितना शुगर कंटेंट है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं ना कि अगर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, तो ये इसके थ्रू पता चल जाता है। बाकी एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसके एप्लीकेशन है, जैसे प्रोडक्ट की मैच्योरिटी का पता लगाना या मटेरियल की प्योरिटी कितनी है, कैसे इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है मेडिकल फील्ड में, ये सब भी पता लगा सकते हैं। सो ये था पोलरिमीटर के बारे में। आइए अब डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन वाज व्हिच वाज नासा's फर्स्ट मिशन टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ एक्स-रे फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है इमेजिनिंग एक्स-रे पोलरिमीटर एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं IXPE। इसे 2001 में लॉन्च किया गया था। एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि मेजर करते हैं अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एक्स-रे लाइट फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार। इसका अचीवमेंट क्या है, IXP revealed the shape and orientation of hot matter around a black hole। इसकी कॉस्ट $188 मिलियन थी और इसका ऑपरेशन 2 इयर्स का है। इसरो ने इसे बहुत ही ना किफ़ायती दाम में बनाया है, सिर्फ 30 मिलियन में, यानी कि उनका है अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ का, हमारा क्या है सिर्फ 250 करोड़ का। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप चाहते हैं कि ब्लैक होल, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी या एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्टिक पे वीडियो बनाओ जो कि पोलरिमीटर स्टडी करेगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।